پروردگارہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے غلامی سے نجات دے کر آرام و آسائش کی زندگی عطا کی۔ اے یوسف، اس طرح خدا نے تمہیں عظمت و کرامت اور جاہ و مرتبہ عطا کیا، تمہیں کنویں کی گہرائیوں سے اوج کمال پر پہنچایا، اور تمہیں علم تعبیر خواب اور احادیث عطا کیا کہ اب تم معبران سے زیادہ ان کے علم اور زبان سے واقف ہو، اور کسی بھی استاد کی ضرورت سے بے نیاز ہو۔ تیرا شکر گزار ہوں، اے خدائے مہربان، تیرا شکر گزار ہوں۔ تم خسارے میں رہے مالک، اگر تم یوسف کو اس کے وزن کے برابر سیم و زر میں بھی تولتے تب بھی خسارے میں تھے، بہت بڑے خسارے میں۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ طوفان میں ہمارا گم ہو جانا تمہیں یاد ہے، اور جانوروں کا اس کنویں کے پاس رک جانا، یہ سب کس لیے تھا؟ تمہارے ہاتھ لگنے کے لیے یا یوسف کی نجات کے لیے؟ میں تو کنویں کے پانی کے میٹھے ہو جانے کو بھی یوسف کے وجود کی برکت سمجھتا ہوں۔ وہ یوسف کو میرا تھپڑ مارنا جس کی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو گیا تھا، بھول گئے؟ کیا یوسف کی دعا کرنے اور اس کے ہاتھ پھیرنے سے مجھے شفا نہیں ملی تھی؟ جناب مالک، اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف نے مجھے بھی موت سے نجات دلائی تھی، میں یوسف کی دعا سے شفا یاب ہوا تھا۔ ہاں، یوسف کی دعا سے۔ یوسف کے وجود سے جہاں دیگر فائدے ہوئے وہیں مال و زر بھی تمہارے ہاتھ آیا۔ یوسف کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ یہ سب تو معجزے ہیں جو صرف انبیاء الہی سے صادر ہوتے ہیں۔ میں کیوں متوجہ نہیں ہوا؟ اصل میں یہ یوسف کون تھا؟ کیوں اس نے اپنا حسب نسب نہیں بتایا؟ لعنت ہے تم پر فلی کے جس نے میرا چین چھین لیا۔ اب تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ مجھے نفع حاصل ہوا ہے، لیکن یہ تو میں سراسر خسارے میں رہا ہوں۔ افسوس فلی، میں نے غلام نہیں بلکہ در حقیقت ایک آزاد بنش ولی یا شاید نبی خدا کو بیچ ڈالا۔ ایسی مؤدبانہ و حکیمانہ گفتگو اور بزرگانہ اطوار پر غور کیوں نہیں کیا؟ بغض و عداوت سے پاک دل اور آئینے کی طرح شفاف روح کیوں دکھائی نہ دی مجھے؟ میں نے آج سے اپنے سابقہ خداؤں کو واصل جہنم کر کے اس کے خدا کا انتخاب کر لیا۔ میں اس خسارے کا ازالہ کروں گا، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ کہاں؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، صبح تک انتظار کرو۔ جناب پوتیفار کا قصر کس طرف ہے؟ سیدھے چلے جاؤ، اس طرف آخر میں۔
यहाँ क्या कर रहे हो? वाली जनाब पूतीफार से काम है। पहले जनाब रुदाम उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। ऊपर आ जाएं। जनाब रुदामुन, ये लोग आली जनाब पोतीफार से मिलना चाहते हैं। अजीज मिस्र, जनाब पोतीफार से आपको क्या काम है? हमने उन्हें एक गुलाम बेचा था। उन्हें बताइए कि मालिक जिससे कल एक गुलाम खरीदा था वो आया है। मैंने पूछा काम क्या है? कुछ सिक्के उनकी तरफ से इजाफी आ गए हैं, वो हम सिर्फ उन्हें ही देंगे। आप लोग यहीं रुके हैं। क्या हुआ रुदामून? एक ताजिर जिसने आपको कल एक गुलाम बेचा था शर्फ बारियाबी चाहता है। लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है? आपका सलूक आपकी अजमत के शायान शान है और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, निहायत ही मुनासिब और बरजस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ। ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो इत्मीनान रखें, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं और जनाबे पुतीफार और आपकी इजाज़त के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरानशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा युजासिफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर? कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं, युजासिफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। देख रही हैं आप, युजासिफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है। मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नामो निशा मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंदे नहीं, ये तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदाए यकता की कसम, अपने नामो निशा बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा
کہ جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں کسی سے نہیں کہیں گے. میں عہد کرتا ہوں اور ابراہیم کے خدا کی قسم کھاتا ہوں. میں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہوں. ہائے افسوس، وائے ہو مجھ پر. ہم چچا زاد ہیں، تم اسحاق کے پوتے اور میں اسماعیل ذبی اللہ کا پوتا ہوں. خدا مجھے کبھی نہ بخشے، میں نے یہ کیا کر ڈالا؟ کیوں تمہیں فروخت کیا؟ میں جانتا تھا ہم چچا زاد ہیں اور مجھے اپنے بیچے جانے پر کسی سے کوئی شکوہ نہیں. مجھے تو مصر میں آنا اور بکنا ہی تھا. یہ تمام واقعات ارادہ خداوندی اور ایک عظیم واقعے کی تمہید ہے. مجھے ان موجوں سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم معمولی انسان نہیں، تم ایک پیغمبر ہو. لعنت ہو مجھ پر کہ ایک پیغمبر کو بطور غلام بیچ ڈالا. میں اس ذلت کے ساتھ کہاں جاؤں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیے. ان واقعات کو رونما ہونا ہی تھا. مجھے تو اپنی رسالت کی انجام دہی کے لیے مصر آنا ہی تھا. آپ تو صرف وسیلہ بنے ہیں. میں تو آپ کا شکر گزار ہوں. میں اس غلطی کا ازالہ کروں گا. یہ لو، یہ تمہاری سند غلامی ہے جس پہ تمہارے مالکوں نے دستخط کیے تھے. اسے چھپا لو. آپ یہیں رکیں. میں نہیں چاہتا آپ ہماری بحث و گفتگو سنیں. میں عالی جناب بوتیفار عزیز مصر سے نہایت معذرت چاہتا ہوں اور مجبور ہوں کہ عالی جناب سے تنسیخ معاملہ کروں. بندہ یوسف کو نہیں بیچ رہا. آفرین آفرین. ابھی کچھ دیر پہلے تک میں تمہیں احمق سمجھ رہا تھا کہ جس نے یوزارشیف جیسے گوہر نایاب کی قدر نہیں جانی، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. تم نے بھی اس گوہر کے جوہر کو پہچان لیا. لیکن تمہیں نہیں لگتا تم نے ذرا دیر کر دی؟ یہ تو تمہیں بیچنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب بہت دیر ہو چکی ہے. عالی جناب، میں اپنی تمام تر جمع پونجی یوسف کا عوض دینے کو تیار ہوں. التجا کرتا ہوں کہ یوسف مجھے لوٹا دیں. سنا نہیں جناب پوتیفار نے کیا فرمایا؟ یوزارشیف کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لوٹایا جائے گا. بندہ بھی عرض کر چکا ہے کہ وہ اس معاملے پر راضی نہیں. ہم یوسف کو نہیں بیچ رہے اور اس کے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. اب اگر تم نے مزید کوئی گستاخی کی تو تم دونوں کو داخلی زندان کر دوں گا. یہاں سے چلے جاؤ. یوسف کو لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے. عالی جناب، یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دیجیے. رودامون، سپاہیوں، انہیں زندان میں ڈال دو. مجھے یوسف واپس چاہیے. میں یوسف کو لے کر ہی جاؤں گا. وہ مجھے واپس لوٹا دیں. یوسف مجھے واپس لوٹا دیں. یوسف مجھے واپس لوٹا دیں. انہیں لے جا کر قید کر دو. مجھے واپس دیں یوسف. یوسف ہمیں لوٹا دیں. واپس چاہیے. ہمیں یوسف لے کر لوٹا دیں. یوسف ہمیں لوٹا دیں. مجھے واپس دیں یوسف. یوسف اپنا خیال رکھنا. میں یوسف کو لے کر جاؤں گا. مجھے یوسف واپس لوٹا دیں. عالی جناب، انہیں معاف کر دیں. انہوں نے میری خاطر خود کو خطرے میں ڈالا ہے. ان کا حق ہے کہ ان کو سخت سزا ملے. میں التجا کرتا ہوں. لیکن صرف یوزارشیف کی خاطر معاف کیا. کہو انہیں آزاد کر دیں. قید کرنے کی ضرورت نہیں. یوزارشیف،
तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये पर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है? इस हिसाब से तो अब युजारसी पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस बेश कीमत हदिये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूजार सेफ को नहला धुलाकर और लिबास नौ ज़ेब तन करा के मेरे पास ले आए। अताल बानो मोहतरम। आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी ताजीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका आदमी ताजीम इरादतन है। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ को नहीं बेचना। यूसुफ हमें वापस लौटा दे। यूसुफ वापस चाहिए। मुझे लेकर जाऊंगा। वो हमें वापस कर दे। वो हमें वापस कर दे। यूसुफ मैं यूसुफ को नहीं बेचना। नहीं बेचता। यूसुफ मुझे वापस मैं यूसुफ को नहीं बेचना। मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे मार दो मगर मुझे यूसुफ दे दो। मैं यूसुफ को वापस लेकर जाऊंगा। यूसुफ को नहीं समझो। मुझे हमें वापस कर दो। यूसुफ हमें लौटा दो। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो यूसुफ की खातिर छूट गए, वरना जिंदान तुम्हारा मुकद्दर था। अब यहाँ अतराफ में दिखाई ना देना। मैं यूसुफ से दस्त बर्दार नहीं होऊंगा। देख लेंगे। अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? पूतीफार और उनकी बानो मेरी तरह अहमक नहीं कि यूसुफ जैसे गौहर नायाब को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दें। हम खसारे में रहे फली। तुम खसारे में रहे, मैं नहीं। खुदा के करम से मुझे मुनाफा हुआ है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा। मुनाफा हुआ है? वो कैसे? तुमने यूसुफ को गवा दिया बगैर कुछ मुनाफा हासिल किया, लेकिन मैंने यूसुफ को खोने के बदले में यूसुफ के खुदा को पा लिया। गुज़िश्ता शब कारवां सरा में मैंने पत्थर के खुदाओं को छोड़कर यूसुफ से यकता परस्ती के अनमोल गौहर को पा लिया। हाँ, खुदा की कसम फली, अगरचे मैंने पैगंबर खुदा को बेचा नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो अपनी सरजमीन वापस जाकर आज के बाद से यकता परस्ती की तरवीज करूंगा। जब तक यूसुफ यहाँ है मैं इस शहर को तर्क नहीं कर सकता। चलो कारवांसरा चलते हैं। ऐसा लगता है कि खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुरीफुर को यहाँ बुलाओ। इसने ये अपने लिबास के नीचे छुपाया हुआ था।
ये यूजारजीफ की सनत फरोख्त है बानो हुजूर। किसी शमून नामी शख्स ने यूजारजीफ को बदस्ते मालिक फरोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, यूजारजीफ आपके सुपुर्द है। मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो, कसर में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उम्र के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका ये ताज़ीम करना अज़्रुए एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आप ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़्रुए एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसकी मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से जहां से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है, और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नज़ारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफजादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो। ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है, और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह कोनिश बजा लाना है। और वो है सूफर जनाब पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है। मुझे यूसुफ को निजात दिलानी होगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ करना होगा। क्या यूसुफ किसी कैदोबंद या जंदान में है जो उसे निजात दिलाओगे? मगर फिर भी वो एक गुलाम है। लेकिन इस पुरशको कसर में उसका हुलिया गुलामों का सा नहीं था। अगर किसी परिंदे का कफस खूबसूरत हो तो क्या वो परिंदा असीर नहीं है? मैं उस वक्त तक मिस्र को तर्क नहीं करूंगा
जब तक कि यूसुफ को याकूब नबी के पास न ले जाऊं। लेकिन तुमने देखा कि अजीज मिस्र और उनकी मलका यूसुफ को किस कदर चाहते हैं। लेकिन याकूब नबी जितना नहीं। मुझे यकीन है कि वो यूसुफ की जुदाई की आग में जल रहे होंगे। लेकिन मालिक, यूसुफ ने बताया था कि उसका मिस्र आना इरादा खुदाबंदी के तहत है। ये मेरा आखिरी तिजारती सफर था। तुम जल्द से जल्द माल तिजारत फरोख्त करके बाबल वापस लौट जाओ। ये खिदमतगारों और गुलामों का रिहायशी हिस्सा है। इनमें से कुछ तो कसर पुतिफार के कारीगर हैं और कुछ या तो कसर के मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं या कपास और नरसल के खेतों में काश्तकारी करते हैं। इनमें से अक्सर मर्द व ख़वातीन इस वक्त मसरूफ़ कार हैं। इनमें से हर एक कमरे में एक ख़ानदान रिहाइश पजीर है। ये लोग इतनी मुफलिसी और बदहाली का शिकार क्यों हैं? जनाबे पुतिफार इन पर कोई तवज्जो क्यों नहीं देते? टिप्स में दीगर खिदमतगार, गुलाम और मज़ारे वगैरह बनिस्बत इनके कहीं बदतर हालत में हैं। हम इन्हें रहने के लिए मकान और मुनासिब ग़िज़ा फराहम करते हैं और इनकी और इनके बच्चों की हिफाजत करते हैं। क्या मैं कभी कभी इनसे मिलने आ सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि बानो जुलेखा और आली जनाब पुतिफार से इजाज़त ले लें। ये गुलाम हमारियाँ उठाने के लिए मखसूस हैं। चलो। यहाँ पर नरसल से कागज तैयार किया जाता है। दुरूद पर आली जनाब होने पर। नरसल किताबत के काम आता है। हम तो किताबत के लिए हैवानात की खाल इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों की खाल से कहीं बेहतर होता है। तुम लिखना जानते हो? जिसने मुझे खल्क किया है उसी ने लिखना भी सिखाया है। ये तो बहुत अच्छा है। जो गुलाम लिखना जानता है वो उसके मालिकों के लिए बड़ी नेमत है। क्या कहा तुमने? किससे सीखा है? उस मुरब्बी से जो मेरा मुख्तार है। वो तमाम ज़बानें जानता है। ये अच्छी बात है। चलें। यहाँ कतान कपड़ा बुना जाता है। कतान वही कपड़ा है जो हम कमर के गिर्द बांधते हैं और इससे लिबास तैयार करते हैं। नफीस तरीन कतान जो यहाँ तैयार होती है वो शाही कतान के नाम से मारूफ है। ये कारखाना सिर्फ अहलियान कसर के लिए कतान कपड़ा तैयार करता है। बानो जुलेखा वो मिस्री अशराफजादी हैं
جن کے لیے اس کارخانے میں نہایت نفیس اور خوبصورت کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ چلو یہ کارخانہ سفالگری۔ درود بر عالی جناب ہونیفر۔ آب رسانی کی چند نالیاں سواری گزرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہیں، انہیں تبدیل کرنا ہے۔ اس ناپ کا ہے نا جناب؟ ہاں ہاں، اسی ناپ کا ہے۔ ان کے تیار ہوتے ہی تبدیل کرا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اناج کا گودام۔ باورچی خانے کی ضرورت کی تمام اشیاء خورد و نوش کی نگہداری یہاں ہوتی ہے۔ تمہارے حواس کہاں ہیں؟ ٹھیک سے کام کرو۔ یاد رہے، آج کے بعد جب تک تمہیں بلایا نہ جائے اور کوئی سوال نہ کیا جائے، جواب نہیں دو گے۔ زلیخا ایک متکبر خاتون ہے اور بسا اوقات درباریوں کی طرح سخت گیر اور بے رحم بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ قصر کا باورچی خانہ ہے۔ یہاں مختلف افراد کے لیے مختلف غذائیں تیار کی جاتی ہیں۔ خدمت گاروں اور غلاموں کے لیے الگ، قصر کے منتظمین اور مسئولین کے لیے الگ، اور جناب پتیفار اور بانو زلیخا کے لیے کھانے کا الگ اہتمام کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی غذائیں کیوں؟ کیا سب کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا تیار نہیں کیا جا سکتا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جناب پوتیفار اور بانو زلیخا غلاموں اور خدمتگاروں کے برابر تو نہیں ہے نا؟ یہ یوزار شیف، آج سے یوزار شیف غذا کی تقسیم میں آپ کی مدد کرے گا۔ یوزار شیف پڑھنا لکھنا جانتا ہے، چنانچہ اس فہرست کے تحت جو ہم اسے دیں گے، ہر شعبے کو اس کی تعداد کے مطابق غذا تقسیم کرے گا۔ دیکھ رہے ہو کس اشتیاق سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، صرف تمہاری خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنا اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ اپنا کام کرو، اپنا کام کرو۔ یہ قصر کا عبادت خانہ ہے۔ پوتیفار اور بانو زلیخا اور دیگر اہلیان قصر یہاں عبادت کرتے ہیں۔ ہم اپنے خداؤں کی یہاں نگہداری کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے خدا جاؤ مکان کے محتاج ہیں؟ تو ظاہر ہے، دھوپ اور بارش میں زیر آسمان تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ درود بر جناب ہونے پر پیشکار اعلیٰ، عموماً قصر کے دورے کے لیے صبح کا وقت مخصوص ہے، آج خلاف معمول اس وقت کیسے؟ یوزار شیف کو قصر دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ میں نے چاہا کہ وہ قصر اور اہلیان قصر سے آشنا ہو جائے۔ کیا ہو گیا ہے؟ قصر سے کچھ جواہرات چوری ہو گئے ہیں۔
ये कसर के दाखिली दरबान हैं और इन दोनों में से कोई भी एतराफ करने को तैयार नहीं है। तो चलो चल कर देखते हैं। दोनों को ही निगहबानों और साकरान कसर की इबरत के लिए तख्तेदार पर चढ़ा दो। अगर इकरार ना करें तो हतमन ऐसा ही करो। मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ। इस तरह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन जनाब हुनीफर, खुदाओं की कसम मेरा कोई कसूर नहीं। सब जानते हैं मैंने कभी चोरी नहीं की। असल में जिस रोज चोरी हुई वो मेरी निगरानी का दिन नहीं था। पता नहीं ये मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। आखिरकार तो हमें मुजरिम का पता चल ही जाएगा। बेहतर होगा कि खुद ही इकरार कर लो और मसले को यहीं खत्म कर दो। इसका कहना है कि तुम इसका ध्यान बटते ही इसकी मामूलियत की जगह पर दाखिल हुए थे। मैं इसकी मामूलियत की जगह पर? ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। गलती हो गई, मैं मजबूर था। इस तरह बताऊं कि चंद लम्हों के लिए मेरी आंख लग गई थी। यानी इस कसर में कोई शख्स भी ऐसा ना था जिसने मुझे देखा हो। निगहबान को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी के दौरान निहायत होशियार और चौकन्ना रहे। तुम्हें सोना नहीं चाहिए था। तुम खताकार हो। तुमने एक तो अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती और दूसरा ये कि तुम्हारा कोई गवाह भी नहीं है। लेकिन आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। मुझे अफसोस है। निनिफर किप्ता को आजाद कर दो और इसको जिंदान में डाल दो। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। खुदाओं की कसम मैंने चोरी नहीं की है, मुझ पर रहम करें। तुम पर खुदाओं की लानत हो निनिफर। तुम पर खुदाओं का कहर टूटे, इन्हें हकीकत क्यों नहीं बता देते? मुंह बंद करो। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर की शनाख्त कर सकता हूँ। नहीं बरखुरदार, ये तुम्हारा काम नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि चोर की शनाख्त हो? क्यों नहीं? तुम कैसे चोर की शनाख्त करोगे? मैंने अपने बाबा से सीखा है। वो फैसला देने में बड़ी महारत रखते थे। तुम्हें यकीन है? जी जनाब हुनीफर, आप चाहें तो आजमा लें। देख लेते हैं। मैं जानता हूँ कि चोर कौन है। बेहतर होगा एतराफ़ कर लें और अपने जुर्म को मजीद संगीन न करें। असल में जिस दिन कसर से जवाहरात चोरी हुए मैं पैरे पर था ही नहीं। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास गवाह भी नहीं। लेकिन मैंने नैनीफर को जवाहरात के कमरे से बाहर निकलते देखा था। बेगुनाह कौन है मैं जानता हूँ। तुम खौफ में मुब्तला मत हो और गुनाहगार को भी खूब पहचानता हूँ। जल्द ये सब भी उसे पहचान लेंगे। मैं जनाब हुनीफर से दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे ही गुनाहगार की निशानदेही करूँ फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मुझे बस उसका पता चल जाए। रुदामून तैयार खड़ा है। मैं उसे मोहलत नहीं दूंगा, बस एक इशारे की देर है। जनाब रुदामून, इन दोनों को इस बागीचे के सामने में 2 जानों बिठा दें। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। रुमाल लाओ। इनके हाथ बांधो।
ایک بار پھر چور کو مہلت دی جاتی ہے. اگر خود اعتراف جرم کر لے تو بخش دیا جائے گا، لیکن اگر ہم نے اس کی نشاندہی کر دی تو جناب رودامون یہیں پر اس کی گردن اڑا دیں گے. چور یہ ہے، اپنی تلوار نکال لے. یہی چور ہے، اس کی گردن اڑاتے ہیں. نہیں نہیں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ چوری میں نے کی ہے. معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے جناب رودامون. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی اعتراف کر لو گے. آفرین یوزارسیف، آفرین. لے جاؤ اسے. آفرین برخوردار، بہت خوب. مجھے یقین نہ تھا کہ کامیاب ہوگے. بہت بہت شکریہ. میں تمہارا مشکور ہوں یوزارسیف. اگر تم نہ ہوتے تو میں بے گناہ مارا جاتا. تم پر خداؤں کی رحمت ہو. تمہاری بے گناہی ثابت کرنا مقصود نہ ہوتا تو نینیفر کو ہرگز شرمندہ نہ ہونے دیتا. یہ اتنا بھی معصوم نہیں. اگر دوبارہ کبھی اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی تو سخت سزا کے مستحق قرار پاؤ گے. شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں. بہت خوب بیٹا، اب چلیں، میرے ساتھ آؤ. کتنا ذہین اور ہوشیار ہے. دیکھا کس طرح اس سے اگلوایا ہے. خوبصورت بھی ہے اور ذہین بھی. مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے کیسے اس بچے نے یہ مسئلہ حل کر.